Morning class 10th. In the last video we have discussed what is respiration. The process of converting food into energy is called respiration. Respiration is of two types. First is aerobic respiration, the other one is anaerobic respiration. Aerobic respiration which takes place in the presence of oxygen, anaerobic respiration which takes place in the absence of oxygen, right? Also we have discussed the breakdown of glucose in various ways. So glucose first breakdown into pyruvate. The 6-carbon molecule glucose break down to form 3-carbon molecule pyruvate, right? This reaction takes place in the cytoplasm and it also releases very less amount of energy, right? Now this pyruvate can break down into three ways. First is aerobic respiration, in which full supply of oxygen we have, right? So if we have full supply of oxygen, this pyruvate completely decomposed to form CO2 plus water plus large amount of energy which is stored in the form of ATP, right? ATP is known as the currency of the cell. ATP के बारे में बात करेंगे. In second case, if there is lack of oxygen, like in our muscle cells, so the pyruvate breakdowns to form lactic acid plus very less amount of energy. And in the third case, when there is no oxygen, like in yeast, the pyruvate breakdown into form ethanol, right? And very less amount of energy is released. So this is the breakdown of glucose in various ways. जो आपका aerobic respiration था, in which there is full supply of oxygen, it takes place in the mitochondria. That is why mitochondria is known as the powerhouse of the cell, right? So what is ATP here? ATP, basically we have to learn about ADP and inorganic phosphate and ATP. ADP is adenosine diphosphate. Di means 2 and ATP is adenosine triphosphate. Tri means 3, right? So ADP adenosine diphosphate molecule है. यहाँ पे P का क्या मतलब है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. जब ADP contains very less amount of energy, whereas ATP contains very large amount of energy. So ADP plus inorganic phosphate combines to form ATP. Now this formation requires energy. ये फॉर्मेशन होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है? तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी मिलती है सेलुलर रेस्पिरेशन. Respiration is the process in which food is converted into energy, ठीक है? And this reaction takes place in the cell. That's why this respiration is known as cellular respiration. The energy released during this cellular respiration is used to form a molecule ATP with the help of ADP and inorganic phosphate, right? Now this ATP contains large amount of energy which can be used further by a cell to perform any activity. When a cell need to perform any activity, it takes energy from ATP. That is why ATP is known as the fuel of the cell activities, right? So ये हमने क्या पढ़ा है? पिछली वीडियो में जो पढ़ा था उसको जल्दी से क्विक रिवीजन किया है. इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? रेस्पिरेशन के लिए वी नो दैट वी रिक्वायर ऑक्सीजन, राइट? सो ऑक्सीजन कैसे अंदर आती है बॉडी के, और जो वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे लिए वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे बाहर निकलता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स, इन प्लांट्स and in some other animals we have to study. Today we are going to study about human respiratory system, how exchange of gases takes place in humans. So let us begin. Welcome back to this
इस पार्ट में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके, कैसे काम होता है सबका, वो सब देखने वाले हैं, राइट। सो देखो वन बाय वन एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जो हमारे पास बेसिकली एयर अंदर जा रही है, वो किसके थ्रू जा रही है? नोज के थ्रू जा रही है। किसके थ्रू? नोज के थ्रू जा रही है, राइट। सो दिस इज योर नोज, दिस इज माउथ, राइट। पहले वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि सारी चीजें क्या क्या हैं, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं और किस किस का क्या क्या फंक्शन है और कैसे सारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, राइट। सो यहाँ पे नोज के थ्रू यहाँ पे एयर एंटर करेगी। एयर एंटर करने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि नोज में कुछ हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, जिनका काम होता है, हेयर्स और म्यूकस का काम होता है डस्ट पार्टिकल को रोक लेना। यहीं पे एंट्री पॉइंट पे ही डस्ट पार्टिकल्स को रोक लिया जाता है, सो दैट योर एयर गेट्स फिल्टर्ड। आपकी एयर क्या हो जाए? फिल्टर्ड हो जाए बिफोर एंटरिंग इनटू द बॉडी। सो द फंक्शन ऑफ हेयर एंड म्यूकस, यहाँ पे नोज के अंदर हेयर और म्यूकस होता है। द फंक्शन ऑफ हेयर एंड म्यूकस इज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द बॉडी, राइट। सो दिस इज योर माउथ। माउथ से हम लोग फूड एंटर करते हैं और नोज से हम लोग एयर एंटर करते हैं। यहाँ पे बीच में इनको सेपरेट करने के लिए बोन होती है, जिसको बोलते हैं बोनी पैलेट। बोनी पैलेट, राइट। नाउ द एयर, जब वो फिल्टर्ड हो गई, फिल्टर्ड एयर गोज टू दिस पार्ट। ये पार्ट कॉमन है माउथ के लिए भी और एयर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से फूड भी एंटर होता है और यहाँ से एयर भी एंटर होती है। दिस कॉमन पाथ इज नोन एज फेरिंग्स। इस कॉमन पाथ को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स, जहाँ पे फूड भी आ रहा है और हमारे पास क्या आ रही है गाइस? एयर भी आ रही है, राइट। सो नाउ दिस एयर passes through the larynx. Larynx is known as voice box. वॉइस बॉक्स बोलते हैं लैरिंक्स को, जिससे हम अलग अलग आवाज, मैं अलग अलग बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा मैं कभी तेज बोल रहा हूँ, कभी हल्के बोल रहा हूँ। कैसे बोल पा रहा हूँ? अपने वॉइस बॉक्स की हेल्प से बोल पा रहा हूँ, जिसको क्या बोलते हैं? लैरिंक्स बोलते हैं। सो लैरिंक्स यानी कि वॉइस बॉक्स कैसे साउंड को प्रोड्यूस करता है, फिलहाल हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि एयर के रास्ते में पढ़ रहा था कौन? वॉइस बॉक्स यानी कि लैरिंक्स, राइट। उसके बाद ये आपको यहाँ पे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं विंड पाइप। और विंड पाइप का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या दिया गया है? ट्रैकिया। क्या नाम है? ट्रैकिया। दिस इज योर विंड पाइप, राइट। सो दिस विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया। इस विंड पाइप पे आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। एंड दीज रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो स्टूडेंट्स, कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज लाइक, आपके पास बोन होती है। बोन आपको सबको पता है कि बोन क्या है। कार्टिलेज इज सॉफ्ट बोन। कार्टिलेज क्या है? एक टाइप की सॉफ्ट बोन है, जैसे कि आपकी यहाँ पे नोज में होती है। ईयर में अगर आप टच करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक सॉफ्ट सी बोन है। तो वही बोन, सॉफ्ट बोन क्या कहलाती है? कार्टिलेज। और इस तरह से ये रिंग्स की फॉर्म में यहाँ पर लगी हुई होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये इसको कोलैप्स होने से बचाती है, इसको श्रिंक होने से बचाती है। क्योंकि अगर ये श्रिंक हो गया, ये बंद हो गया, तो एयर अंदर नहीं जा पाएगी, विंड पाइप के थ्रू पास नहीं हो पाएगी और हमें सफोकेशन होगी, ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी। तो ये विंड पाइप ओपन होना चाहिए। विंड पाइप का अदर नेम क्या है? ट्रैकिया। ये हमेशा ओपन होना चाहिए। तो इसको कोलैप्स होने से बचाने का काम कौन करता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है राइट द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट्स द ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप, फ्रॉम कोलैप्सिंग, राइट। सो अब एयर यहाँ से एंटर हो रही है
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आपको पता चल गया, ट्रैकिया के थ्रू पास हो रही है, विंड पाइप के थ्रू पास हो रही है। नाउ ये जो विंड पाइप है ये आपके लंग्स में आते हैं और लंग्स में दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाते हैं। इस डायग्राम के अंदर एक साइड मैंने रिब केज दिखाया है, एक साइड आपको आपके लंग्स के अंदर के पार्ट्स दिखा रहे हैं, ठीक है। होता दोनों में है ये सेम चीज, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ट्रैकिया आ रहा है, ये जो विंड पाइप आ रहा है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक इस लंग में एक इस लंग में, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे थोड़ा मोटा होगा, उसके बाद ये ब्रांचेस में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, तो पतली पतली ब्रांचेस होनी शुरू हो जाती है, थिन ब्रांचेस होनी शुरू हो जाती है, ये यहाँ तक थिक रहता है, उसके बाद ये थिन ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड होना शुरू हो जाता है, राइट। सो ये आपका क्या है, लंग्स है, राइट। अब लंग्स जो है, अभी पढ़ते हैं ये ब्रांचेस में कैसे डिवाइड हो रहा है, पहले बात कर लेते हैं थोड़ा लंग्स की। लंग्स बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि एयर इन्हीं के अंदर फिल होती है, राइट। सो अब आपको पता होना चाहिए कि लंग्स है कहां पर। ये जो आपको रिब केज दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रिब केज, है ना। तो इस रिब केज के अंदर अगर मैं यहां से इस लंग को फिलहाल निकाल दूं, अगर इस रिब केज के अंदर कोई लंग्स नहीं है तो क्या आपको एक खाली स्पेस मिलेगा, एक कैविटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और उसी कैविटी को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। दिस कैविटी इज नोन एज थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी, ऑब्वियस सी बात है चेस्ट में होती है इसलिए चेस्ट कैविटी तो कहलाई जाएगी। थोरेसिक कैविटी इज द साइंटिफिक नेम होता है कैविटी फॉर्म इन द रिब केज। रिब केज के अंदर अगर लंग्स नहीं है तो उसके अंदर जो कैविटी है, जो गैप है, वो बेसिकली क्या कहलाएगा आपका, थोरेसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी, राइट। सो वापस से लंग्स को इसके अंदर रख देते हैं। किसके अंदर रखा हमने लंग्स को, थोरेसिक कैविटी के अंदर। आपको एक और बात बता देता हूं कि इस डायग्राम में नहीं है, यहाँ पे एक फिल्म लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं डायफ्रैगम। ये क्या कहलाता है, डायफ्रैगम। ये वो वाला पार्ट है जो हमारे चेस्ट वाले पार्ट को और हमारे एब्डोमिनल वाले पार्ट को, जहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है, स्टमक वाले पार्ट को सेपरेट आउट करने का काम करता है। ये वो मेम्ब्रेन है, ये वो फिल्म है डायफ्रैगम, जिससे हमारा चेस्ट वाला पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट सेपरेट आउट होता है, राइट। सो इसको क्या बोलते हैं, डायफ्रैगम, राइट। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन आए कि यार बताओ, क्वेश्चन पेपर में आया बोर्ड में कि where actually the lungs is placed inside the body, तो आप क्या लिखेंगे, the lungs is placed inside the thoracic cavity of the rib cage above the diaphragm, above the diaphragm। ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिख के आनी है, क्लियर है चीज। इसके बाद देखो फिर से आते हैं कि विंड यहाँ से आ गई थी, एयर यहाँ से आ गई थी विंड पाइप के थ्रू और डिवाइड हो गई थी दो ब्रांच में। ये ब्रांचेज अभी थिक हैं, ये जो दो ब्रांचेज में डिवाइड हो रही हैं ये दोनों थिक हैं, और इनके ऊपर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज देखने को मिलेंगे। इनको बोलते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस जो है आपका वो सिंगुलर फॉर्म है। ये जो ट्रैकिया यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, इसको बोलते हैं क्या, ब्रोंकस। ब्रोंकस आपका सिंगुलर फॉर्म है, मतलब एक के लिए आता है, दो है तो इसकी प्लूरल फॉर्म आएगी जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या कहलाएगा, ब्रोंकाई। तो ये प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म, राइट। यहां तक क्लियर है। तो ब्रोंकस यहाँ पे लिखा हुआ था, ये सिंगुलर फॉर्म, और दो हैं इसलिए इनको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि ये जो ब्रोंकाई हैं, ये जो ब्रोंकस है आपका, ये फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और इन छोटी छोटी ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल, और ये सिंगुलर फॉर्म है। अगर मुझे कई सारे ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म क्या आ जाएगी, ब्रोंक्यूल्स।
राइट, ये हुई प्लूरल फॉर्म ब्रोंकियोस। अब ये जो ब्रोंकियोस हैं ये एंड होते हैं विद अ बलून लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एल्वियोलस। एल्वियोलस, ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है किसकी, बलून लाइक स्ट्रक्चर की। और ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर मिलियंस में होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, अराउंड 600 मिलियंस बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म है, मतलब एक ही है तो एल्वियोलस, बहुत सारे हैं तो प्लूरल फॉर्म में क्या बोल दूंगा, एल्वियोलाई। राइट, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है कि विंड आई है, एयर आई है, विंड पाइप के थ्रू डिवाइड हुई है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोस, ये जो ब्रांचेस हैं ये ब्रोंकियोस, और उसके बाद बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं एल्वियोलस। अगर सिंगुलर है, हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारे होते हैं, अराउंड 600 मिलियन होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, उनको बोल देते हैं एल्वियोलाई, जो कि प्लूरल फॉर्म है किसकी, एल्वियोलस की। क्लियर है यहाँ तक की चीज। इसके बाद अभी तो एयर आ रही है, वो सब हमने देख लिया कि कैसे एयर का पाथ हम ट्रेस कर पा रहे हैं। नोज से आ रही है, ये आपका नेजल पैसेज हो गया, इसको क्या बोलते हैं, नेजल पैसेज। हमें पता है नोज के अंदर 2 नोस्ट्रिल्स होती हैं, ये आपका नेजल पैसेज कहलाता है। हमें पता है नोज के अंदर 2 नोस्ट्रिल्स होती हैं और नोस्ट्रिल के थ्रू ही एयर एंटर करती है, उसके अंदर हेयर्स होते हैं जो कि डर्ट पार्टिकल्स को रोक देते हैं। नेसल पैसेज के थ्रू फेरिंग्स में आएगी, लैरिंग्स में आएगी, ट्रैकिया जो कि विंड पाइप है उसमें आएगी, उसके बाद ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है ट्रैकिया, ब्रोंकाई फर्दर ब्रोंकियोस में डिवाइड हो जाती है और ब्रोंकियोस फर्दर एंड होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर पे, जिसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। राइट, रिंग जो ये आपका लंग्स हैं ये कौन सी कैविटी में होते हैं, थोरेसिक कैविटी में होते हैं, रिब केज के अंदर होते हैं। रिब केज का काम क्या है, इन लंग्स को प्रोटेक्ट करना, काफी ज्यादा डेलिकेट होते हैं ये लंग्स, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास बोन्स होती है जिनको रिब्स बोलते हैं, और वो पूरा केज बनाती है जिस केज को क्या बोलते हैं, रिब केज। ठीक है, इस लंग्स के नीचे ही क्या होता है, डायफ्रागम होता है जो कि हमारे एब्डोमिनल और चेस्ट पार्ट को सेपरेट आउट करने का काम करता है। राइट, साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं कि लंग्स के ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो क्या कहलाती है, प्लूरेरा। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लंग्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, उनको हाई प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है प्लूरेरा जो प्रोटेक्शन करती है, साथ ही साथ उनके ऊपर एक बोन्स का हार्ड कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं रिब केज। राइट, सो अब देखो होता क्या है यहाँ पे कि ये जो हमारे पास बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो एक एल्वियोलस आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना, जब इसके अंदर एयर एंटर करती है, कोई ट्रैकिया से आ रही थी एयर, ब्रोंकाई पे गई, ब्रोंकियोस पे गई, फर्दर उसको कहाँ जाना है, इस बलून लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एल्वियोली पे जाना है। तो जब ये इसके अंदर एंटर करती है ना, तो ये अपने आप को एक्सपेंड करता है, जैसे बलून में हवा करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, तो ऐसे ही ये अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसके चारों तरफ होती हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, अब ब्लड वेसल्स हैं तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होगा, राइट, और ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है, नाम सुना होगा आपने, हीमोग्लोबिन। उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। राइट, इस हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी है रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन रेड कलर देने का काम करता है, पिगमेंट है। पिगमेंट क्या होता है, जो कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। कलर तो प्रोवाइड कर ही रहा है ये रेड कलर, साथ ही साथ इसका एक और काम है, ये मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। जैसे एक मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेट आयरन के पास लेके जाओ, आयरन को अपने पास खींच लेगी, ऐसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने पास खींच लेता है। हीमोग्लोबिन के पास एफिनिटी है किसके लिए,
ऑक्सीजन के लिए। जैसे ऑक्सीजन इसके पास आती है इट विल अट्रैक्ट द ऑक्सीजन, अपने पास खींच लेगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है इन वेसल्स में, तो इन वेसल्स में ब्लड फ्लो करने का मतलब है कि उनमें हीमोग्लोबिन भी है जिसके पास टेंडेंसी है ऑक्सीजन को अपने पास खींचने की। तो ये जो आपने एयर यहाँ पे एंटर कराई थी, इसके अंदर जो ऑक्सीजन होगी उसको कौन खींच लेगा अपने पास, हीमोग्लोबिन खींच लेगा। तो एल्वियोली के थ्रू ब्लड के अंदर क्या आ चुकी है, ऑक्सीजन आ चुकी है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बना लेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। सो अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ यानी कि ब्लड के साथ मिल चुकी है, जिस ब्लड में पहले से आपका डाइजेस्टेड फूड है जो आप डाइजेस्ट कर चुके हो, जो कि हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था। अब क्या होगा, रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होगा। ये फूड रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ग्लूकोज रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या देगा, एनर्जी देगा, ठीक है ना। ये ब्लड सब जगह ट्रेवल होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, हार्ट का होता है। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हार्ट क्या होता है, हार्ट कैसे काम करता है, ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे कराता है, राइट। सो अब तक हमने क्या देखा कि एल्वियोली का बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर उसके अंदर एंटर करे। एयर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी गैसेज होती हैं। हमें सिर्फ कौन सी चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को खींचने के लिए ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है, स्पेशल पिगमेंट जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ऑक्सीजन जैसी दिखती है उसको खींच लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसमें जो आपका वेस्ट मटेरियल यानी कि CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एल्वियोली के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एल्वियोली के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से वो जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो वो एयर के साथ साथ ये CO2 भी बाहर आ जाती है, ठीक है ना। समझ आई बात। तो अभी पढ़ेंगे कि ये CO2 कैसे आती है यहाँ ब्लड के अंदर, वो भी देख लेंगे। फिलहाल यहाँ तक क्लियर है, चलो देखते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो ये डायफ्रागम अपने आप को क्या कर लेता है, फ्लैट कर लेता है। अभी ये ऐसा है, ठीक है ना, अभी ये ऐसा है। जैसे ही मैं ब्रीथ इन करूँगा तो ये अपने आप को फ्लैट कर लेगा। तो फ्लैट करने की वजह से देखो अभी तक ये ऐसा है, यहाँ पे रिब केज है, राइट। ऐसे समझो कि ये यहाँ पे डायफ्रागम है, ऐसा है थोड़ा, और ये रिब केज है। जैसे मैं ब्रीथ इन करूँगा ये अपने आप को फ्लैट कर लेगा। तो फ्लैट करने की वजह से जो आपका रिब केज है वो खुल जाएगा, ठीक है ना। रिब केज खुलने की वजह से क्या होगा, आपके लंग्स को स्पेस मिल जाएगा ताकि लंग्स के अंदर हवा भर सके, एक्सपेंड हो जाए लंग्स बड़े हो जाएं। जब मैंने कहा ना कि एल्वियोली बड़े, तो एल्वियोली बड़े होने का मतलब है लंग्स भी तो फूलेंगे ना। तो लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए स्पेस चाहिए, वो स्पेस प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, डायफ्रागम कर रहा है, ठीक है। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो डायफ्रागम अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, जिसकी वजह से रिब केज अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, और रिब केज अपनी पोजीशन पे वापस आता है तो लंग्स के ऊपर प्रेशर लगता है और हम एयर को बाहर छोड़ देते हैं, CO2 को बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोसेस होता है आपका रेस्पिरेशन का। क्लियर है चीज। तो अब तक यहाँ पे बोर्ड पे जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको क्लियर होगा, आई होप। चलो देखते हैं इसके बाद और क्या क्या होता है, 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं सारी चीजें। ये मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर मुझे पार्ट ट्रेस करना हो तो कहाँ से क्या क्या होता है। एयर इज टेकन इनटू द बॉडी बाय नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर एंटर होती है। द एयर व्हाइल पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन एयर, वो फिल्टर हो जाती है फाइन एयर्स के थ्रू। फ्रॉम नोस्ट्रिल्स एयर पासिस थ्रू फेरिंग्स,
लास्ट में उसके कौन पड़ता है, पहले फेरिंग्स जो कि कॉमन पार्ट है एयर के लिए और फूड के लिए, देन लैरिंग्स जो कि हमारा वॉइस बॉक्स है, एंड एंटर्स इनटू द ट्रैकिया, और उसके बाद किसके अंदर जाती है, ट्रैकिया जो कि हमारा विंड पाइप है, जिसके ऊपर क्या होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द ट्रैकिया व्हिच एंश्योर्स एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स, उसको कोलैप्स होने से बचाता है ताकि विंड पाइप प्रॉपर अमाउंट में एयर को एंटर होने दे, ठीक है ना। उसके बाद देन ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई, ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक इस लंग्स में एक इस लंग में चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। देन ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू मैनी ब्रांचेस व्हिच इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स, and finally bronchioles terminates into a balloon like structure called alveoli. So this is the structure of your human respiratory system, right? ये पूरा आपका सिस्टम का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हमने पढ़ा है द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी। जो लंग्स हैं वो कहाँ होते हैं, चेस्ट कैविटी यानी कि थोरेसिक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, विच इज सेपरेटेड बाय एब्डोमिनल कैविटी, जिसको एक एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट किया जा रहा है। मतलब एब्डोमिनल कैविटी अलग, चेस्ट कैविटी अलग, बाय मस्कुलर पार्टीशन डायफ्रागम। कौन कर रहा है ये काम, एक मस्कुलर पार्टीशन है, एक मस्कुलर फिल्म है जिसका नाम क्या है, डायफ्रागम, ठीक है ना। एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम क्या है, डायफ्रागम। The lungs are covered by two thin membranes called pleura and are enclosed in a rib cage. जो lungs हैं वो क्या है, एक मेम्ब्रेन से आपके क्या है, एनक्लोज हैं, दो मेम्ब्रेन से पतली पतली सी मेम्ब्रेन्स होती है जिसको क्या बोलते हैं, प्लूवेरा, और उसके बाद वो किसके अंदर एनक्लोज होते हैं, रिब केज के अंदर एनक्लोज होते हैं, राइट। सो इनहेलेशन में जब व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्ज ड्यू टू द लिफ्टिंग ऑफ रिब केज। चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाती है ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्रागम, फ्लैटन हो जाता है ये, रिब केज ओपन हो जाता है जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाती है, एंड देन एयर रशेस इनटू इन थ्रू नोस्ट्रिल्स, जिसकी वजह से एयर फटाफट से अंदर आ जाती है। एक्सहेलेशन में क्या होता है, व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर दिस डायफ्रागम गोज बैक टू इट्स पोजीशन and now the chest cavity decreases which pushes the lung and the air comes out through the nostrils, right? So this is known as exhalation. Gases exchange कैसे होती है, एयर जो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी एयर के अंदर, गेट मिक्स इन द ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के थ्रू वो ब्लड के अंदर मिल जाती है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का एक और काम होता है, उसको रेड कलर प्रोवाइड करना, राइट। दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिल गई है, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इज टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी। ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हार्ट ट्रांसपोर्ट देता है ब्लड को। वो पढ़ेंगे कैसे होता है ट्रांसपोर्ट भी। ऑल्सो द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द एल्वियोलर कैविटी बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन इन द ब्लड। जब हमारे सेल्स ऑक्सीजन का यूज करके किसी रिएक्शन को पूरा करते हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, CO2, ठीक है। अब नाउ दिस CO2 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये किसमें डिसॉल्व हो जाती है, वाटर में, और क्या बनाती है आपके पास, SCO3 प्लस H प्लस। दिस इज योर बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। नाउ दिस बाइकार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर। ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड थी ये सोल्यूबल इन वाटर थी, ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में वाटर के अंदर सोल्यूबल रहती है, और ये कहाँ मिक्स हो जाती है फिर, ब्लड में। ब्लड में भी हमारे वाटर होता है ना, तो उसके साथ ये मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो अब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है, किस फॉर्म में है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में। इसको बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द ब्लड बट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, राइट। सो अब जब ब्लड वापस लंग्स पे आएगा जिसके पास SCO3 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है डिसॉल्व्ड फॉर्म में, वो क्या होगा, उसमें एल्वियोलाई में क्या करेगा, उस CO2 को पास कर देगा, ठीक है ना। ये आपका एल्वियोलाई है, ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे ब्लड के अंदर CO2 है जो कि हाई कंसंट्रेशन रखती है क्योंकि हमारे सेल्स ने उसको बनाया है, बहुत ज्यादा CO2 हमारे ब्लड में इस टाइम है, और यहाँ पे CO2 है, एयर से हमने ली थी,
लेकिन उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी लो थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो हमेशा चीज़ें डिफ्यूज़न में हाई से लो की तरफ मूव करती हैं। तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, एल्वियोली के अंदर आ जाएगी। उसके बाद जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो ये भी एल्वियोली के थ्रू निकल जाएगी। क्लियर है ये चीज़? तो इस तरह से हमारा रेस्पिरेशन होता है पूरा, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा कि हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, कैसा दिखता है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन हैं और कैसे कैसे वो काम करते हैं, राइट। और हमने ये पढ़ा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, कि लंग्स कहाँ प्रेजेंट हैं, प्रोटेक्शन की नीड क्यों है, कैसे प्रोटेक्ट हो रहे हैं। इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्रागम क्या करता है, एक्सहेलेशन करते हैं तो डायफ्रागम क्या करता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज बताई कि जो ऑक्सीजन है वो तो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाती है। अब हीमोग्लोबिन का काम है पूरे ब्लड के साथ फैल के, ब्लड में हीमोग्लोबिन है उसके साथ पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑक्सीजन खाली डिफ्यूजन के प्रोसेस से ट्रांसफर हो रही होती, ऑक्सीजन अगर डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो रही होती, कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका बॉडी साइज बहुत छोटा होता है, तो वो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो डिफ्यूजन के थ्रू कर लेते हैं, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करा देते हैं ऑक्सीजन को, जिससे उनका काम हो जाता है। लेकिन जो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स में भी जो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं और हम लोग भी ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, बॉडी साइज बहुत बड़ा है, तो डिफ्यूजन के थ्रू ये प्रोसेस नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के थ्रू ही पहुंचाना है तो आपको मैं बता दूं कि लंग्स से लेके टो तक को ऑक्सीजन पहुंचने में, लंग्स से लेके टो तक ऑक्सीजन पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे, ठीक है ना। इट इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब तक हम शायद ना बचे, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए ठीक है, लेकिन बड़े ऑर्गेनिज्म के लिए जिनका लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर है गाइस, उनको क्या चाहिए, उनको एक स्पेशल पिगमेंट चाहिए लाइक हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा सके पूरी बॉडी में, ठीक है ना। और CO2 को निकलने के लिए किसी पिगमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि CO2 डिजॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर और कहाँ आ जाती है, ब्लड में आ जाती है और ब्लड के साथ फ्लो करना शुरू कर देती है। क्लियर है? तो ये था पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इन प्लांट्स एंड सम अदर एनिमल्स। वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर पसंद आई होगी, ठीक है ना। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। हैव अ नाइस डे गाइस।